हेलो एवरीवन। काफी अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे और आपको डाउट्स भी आ रहे हैं। देखिए, डाउट्स आपको तभी आएंगे जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग द स्टडी एट होम। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एज वेल एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द प्रोसेस which takes place of its own without using an external force is known as spontaneous process. We have discussed the features of spontaneous process also. You know that it is natural process and it is also irreversible process. Then it may be fast or it may be slow. Means the spontaneity of the reaction does not concern with the rate of the reaction. So equilibrium can be obtained at the end of the process in case of a spontaneous process. तो ये थे इससे कुछ फीचर्स। उसके बाद हमें देखे थे कुछ एग्जांपल्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। आपको याद होगा, यस, just like a waterfall, then melting of ice, dissolution of a sugar in hot coffee. Many more examples we can give for this process. Yes, आपको याद होगा और एक चीज कि spontaneous process होता है मोस्टली यस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके लिए आपको याद होगा एक रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिया था। When HCl, that is a strong acid, reacts with NaOH or KOH, it produces NaCl plus H2O. So in this case, the value of delta H naught, I told you, its value is minus 57.13 kilojoules. This reaction is known as, yes, neutralization reaction. So these kind of reactions are there. Now this reaction is an example of a spontaneous process, but this is an exothermic reaction. मैंने आपको बोला है कि बहुत आसान है पहचानना कि कौन सा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा, यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा H नॉट का साइन आता है निगेटिव, then you have to identify that the reaction is exothermic reaction. और जब भी आएगा वो पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बोला था द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे कि आपको याद होगा H2O, यस, क्या होता है, सॉलिड will change into H2O, yes, liquid. Then in that case delta H naught of F, enthalpy of fusion का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, plus 6.01 kilojoule at 25 degrees Celsius. So this is an example of enthalpy of fusion. You know that this reaction is spontaneous reaction, but it's an example of endothermic reaction. तो इससे ये साबित हो जाएगा यहाँ पे कि स्पॉन्टेनिटी और एनर्जी जो है, देखिए रिएक्शन में अगर हीट बाहर आए या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाए, इससे स्पॉन्टेनिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। सो एनर्जी इज नॉट ओनली दैट फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड whether the process is spontaneous or not. ठीक है, आपको याद होगा इसके अलावा हमने और एक एग्जांपल देखा था NaCl solid, yes, when it is dissolved in water it gives NaCl, that is nothing but NaCl aqueous,
and in that case also I told you enthalpy of yes solution बोलते हैं हम उसको. क्या कैसा वैल्यू यहाँ पे 3.9 और you can take here 4 किलो जूल. कुछ बुक्स में यहाँ पे 3.9 दिया है और कहाँ पे दिया है 4 किलो जूल्स पर मोल. Remember this value is only per mole. This is also even an example of endothermic reaction. So reaction may be exothermic reaction or the reaction may be endothermic reaction, but energy is not that factor which will decide the spontaneity of the chemical reaction. तो spontaneity decide करने वाला कौन सा टर्म होगा यहाँ पे? The term that will decide the spontaneity of the chemical reaction, yes, it is known as entropy. It is known as entropy. Entropy के लिए जो सिंबल हम यहाँ पे लेते हैं वो है S. Before to start with this term entropy, let me ask you some example. आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको और आपको मुझे बताना है कि ये जो मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं वो एग्जाम्पल कौन से है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के है या फिर वो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के. सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इन्होंने पहला एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन हॉट कॉफी. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन हॉट कॉफी. ये जो एग्जाम्पल है, बोलिए कौन सा एग्जाम्पल होता है यहाँ पे? यस, this is an example of spontaneous process. Separation of argon and krypton from their mixture. You know that both argon and krypton, they are nothing but noble gases. लेकिन अगर इनको सेपरेट करना है हमें तो ये अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रोसेस. आई मीन वी हैव टू यूज सब एक्सटर्नल फोर्स. तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो सेपरेशन ऑफ आर्गन एंड क्रिप्टॉन फ्रॉम देयर मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बाद में है स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन. देखिए स्प्रेडिंग मतलब क्या? स्प्रेड होना, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू उसकी. तो when the bottle of perfume is open, then the fragrance get sprayed everywhere in the room. तो ये जो एग्जांपल है ये कौन सा एग्जांपल होगा? Yes, this is again an example of a spontaneous process, क्योंकि ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. Then flow of heat from cold object to hot object. Flow of heat from cold object to hot object. ये जो एग्जाम्पल है कौन सा एग्जाम्पल है ये? सुनिए गौर से, क्या बोला है? हॉट से कोल्ड नहीं बोला है, कोल्ड से हॉट बोला है. ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. अगर बोला होता फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, देन दिस मस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ यस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन यहां पे उल्टा बोला गया है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट. दैट इज नॉट पॉसिबल. It's a non-spontaneous process. Heat transfer from ice. Heat transfer from ice to room at 25 degrees Celsius. अभी देखिए heat transfer from ice. Ice का जो होगा टेम्परेचर is already 0 degree Celsius and the temperature of the room is 25 degree Celsius. तो कैसे पॉसिबल है कि आइस से रूम में फ्लो हो टेम्परेचर का या फिर हीट का? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आइस इज इवन एट लो टेम्परेचर. रूम का होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और आइस का क्या होता है टेम्परेचर यहाँ पे? 0. सो यू कैन जस्ट सी आइस से रूम को टेम्परेचर कैसे यहाँ पे पास होगा? नहीं होगा ना. यस, दैट इज द रीजन इट्स एन एग्जांपल ऑफ यस non-spontaneous process. So in this way we have to classify, we have to understand the concept of spontaneous and non-spontaneous process.
ओके, तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि दिया गया प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस है या फिर वो है नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, नाउ लेट द नेक्स्ट टर्म इज एंट्रोपी हियर. क्या होता है एंट्रोपी? नाउ सी, this is the property which measures the degree of disorderness or randomness in the system. Yes, the property which measures the degree of disorderness or randomness in the system. The property which measures the degree of disorderness or randomness in the system is called as entropy. The property which measures the degree of disorderness. Disorder मतलब जहां पे परफेक्टली ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, जहां पे बिल्कुल डिसऑर्डर ही डिसऑर्डर है, और जहां पे बिल्कुल रैंडमनेस हो. आपको पता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स, liquids, gases. देखिए, इन केस ऑफ सॉलिड देयर इज परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट. देखिए, इफ यू सी क्यूबिकल एग्जांपल, सम ऑफ द क्रिस्टल्स दे हैव देयर यूनिट सेल्स. अभी क्या होता है यूनिट सेल, इसके बारे में हम जानेंगे दूसरे टॉपिक में. फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि इन केस ऑफ सॉलिड्स देयर इज परफेक्ट ordered crystalline arrangement. So that's why solids have definite shape and definite volume. Specifically अगर देखा जाए तो इनके जो होते हैं यूनिट सेल्स, ये कई प्रकार के होते हैं. फॉर एग्जांपल क्यूबिक, हेक्सागोनल, देन रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पे दे सकते हैं एग्जांपल्स. तो सॉलिड्स में क्या होता है, देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर of the constituent particles. और ये पार्टिकल इट मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, चाहे जो भी कुछ हो, बट यहां पे होता है परफेक्ट ऑर्डर. इसीलिए क्या होता है, इट्स अ मोस्ट ऑर्डरली स्टेट. आप वही जाके देखोगे इन केस ऑफ लिक्विड्स देयर इज नो सो मच परफेक्ट ऑर्डर. यहां पे जो रहेंगे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, इनके बीच में ऐसा प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहेगा. गैसेस में तो आपको पता है दे हैव मोस्ट डिसऑर्डर, क्योंकि यहां पे जो भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स, आपने पढ़ा होगा केटीजी में, केटीजी इन द सेंस, यस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने देखा होगा, these molecules they have rapid random motion in all possible directions. तो गैसेस में कहां पे रहेगा ऑर्डरनेस? यस, नॉट पॉसिबल. सो दे आर हैविंग परफेक्ट डिसऑर्डर. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे बताइए यहां पे इन तीनों में से कौन से टाइप के स्टेट में ज्यादा रहेगा डिसऑर्डर? यस, gases. That's why gases are the substances they are having
highest disorder. That's why they are having highest entropy. So in this way we can measure the degree of disorderness or the degree of randomness in the system. Okay, so we have to say here कि गैसेस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा, बाद में लिक्विड का और बाद में फिर होगा सॉलिड्स का. सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इनका सबसे कम होगा डिसऑर्डर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑर्डरली फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म. ओके, समझते हैं का ऑर्डर आप लोग. सी व्हेनेवर ऑल द स्टूडेंट्स दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो इसमें क्या होता है पता है, दे आर स्टैंडिंग इन अ परफेक्ट क्यू. तो इसमें क्या होता है कि यू कैन सी देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर. लेकिन अगर आप ऐसे ही खड़े हो सामने, बिल्कुल कोई क्यू में यहाँ पे है नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं रहेगा. इट्स अ डिसऑर्डर फॉर्म. सो इस तरीके से वी कैन गिव एग्जांपल और यू कैन टेक मेनी एग्जांपल. सो सी द पॉइंट इज हियर, इन केस ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, जिसका ज्यादा होगा डिसऑर्डर उतना उसका क्या होगा, ज्यादा होगा एंट्रोपी. सो सी दिस इज द एंट्रोपी. एंट्रोपी क्या होता है फिर, द प्रॉपर्टी विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन द सिस्टम. एक्चुअली हम लोग जो मेजर करते हैं वो होता है एंट्रोपी चेंज. ओके, लाइक यू नो दैट जैसे होता है एंथैल्पी, इवन यस कैसे होता है एंथैल्पी, एंट्रोपी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, and also a state function because its values depends only on the initial and the final state. Similarly, in entropy is an example of extensive property because its value will depend on the amount of matter present in the system. So entropy के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो होता है state function as well as extensive property. So enthalpy भी ऐसा ही था, enthalpy, internal energy as well as entropy. Remember E, all they are nothing but the state functions and they are the examples of extensive property. तो S रहेगा इसके लिए symbol. S is nothing but entropy. Generally we have to measure here entropy change, delta S. Delta S क्या होता है? Yes, it is nothing but change in the entropy. Change in the entropy. Yes, entropy change is equal to Q reversible. शायद आपके टेक्स्ट बुक में ये Q जो है ये दिया हुआ कैपिटल, सो ये है इसका फॉर्मूला. और अगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा Q as capital, then just take it as Q reversible divided by T. तो सिंबल चाहे स्मॉल q हो या हो कैपिटल Q, उसका मतलब क्या होता है पता है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द रिवर्सिबल मैनर. क्या होता है यहाँ पे Q, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड to the system in a reversible manner divided by T का मतलब क्या होता है, absolute temperature. Amount of heat supplied to the system in the reversible manner divided by यहाँ पे क्या आएगा, absolute temperature. So entropy change is defined as the ratio of amount of heat absorbed या फिर amount of heat supplied to the system in the reversible manner divided by absolute temperature. आपको पता है हीट हम मेजर करते हैं जूल्स में और टेम्परेचर हम मेजर करते हैं केल्विन में, इसलिए जूल
per Kelvin is nothing but the unit of entropy change. So in this manner we have to decide the entropy change. Entropy change will be that factor that will decide the spontaneity of the chemical reaction. So entropy change decides the entropy change decides the factor spontaneity of process. Entropy change will be that factor जो डिसाइड करेगा कि गिवन प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. कैसे, अभी हम देखते हैं. पहले आप लोग उसको लिख लीजिएगा. So delta S is equal to Q reversible divided by T. Delta S is nothing but a change in entropy. It is equal to Q reversible. Q may be either you can take capital Q or small q, जो भी दिया है आपके बुक में. So delta S is equal to Q reversible upon T. That is the formula for entropy change. Entropy change की अगर हम बात करेंगे तो delta S can be determined by summation of total entropy of the products minus summation of total entropy of the reactants. So by this formula also we can calculate the value of entropy change. For any given chemical reaction, the formula of delta S is like this: summation of total entropies of the products minus summation of total entropy of the reactants. So this is the formula for delta S. अगर हम बात करते हैं delta S total की, I mean in case of system and surrounding, अगर ऐसा है तो डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी टोटली डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. सो दिस इज अगेन द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस. डेल्टा एस टोटल क्या होगा? टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम प्लस टोटल एंट्रोपी चेंज दैट इज फॉर द सराउंडिंग इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स. आपको याद होगा हमारा पहला लेक्चर, इसमें मैंने आपको बोला था क्या होता है यूनिवर्स. सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज नोन एज यूनिवर्स. सो इन दिस वे वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए काम आएंगे. और अगर चाहिए तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल, I mean entropy of the final state minus S initial minus entropy of the initial state. So in this way delta S we can find out. Understand? So this is nothing but the value of this is the formula for delta S. आया समझ में? So इस तरीके से हमें ये entropy change फाइंड करना होगा. अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी, तो फॉर सॉलिड्स एंट्रोपी इज हाईएस्ट, नंबर 2 पे होगा लिक्विड्स और नंबर 3 पे होगा यहां पे गैसेस. सो दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी. सॉलिड्स की हमेशा, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है आपको, यहां पे एरो जाएंगे इस तरीके से.
सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की इंटरमीडिएट और गैसेस की सबसे ज्यादा होगी एंट्रोपी, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, उनके लिए होता है मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस। तो सोचिए कोई चेंज, समझो यहां पे आयोडीन। नाउ एग्जांपल नंबर 1, आयोडीन अगर है सॉलिड फॉर्म में, यू नो दैट आयोडीन is nothing but the element from the 7th A group as per the Mendeleev's periodic table, और वही आयोडीन आता है ग्रुप नंबर 17 में, that is nothing but from the halogen family. It's the element present in a solid state. Yes, if it will change into iodine aqueous. Now I told you for solid entropy is least and aqueous state में क्या हो जाएगा, इसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। मतलब जो है फाइनल स्टेट, उसका एंट्रोपी क्या है, इनिशियल से यहाँ पे इसका एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे डेल्टा एस का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा एस इज यस इट इज पॉजिटिव। So the value of delta S is nothing but positive. So क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का क्या होगा, डिसऑर्डर इसमें कम रहेगा, क्योंकि it was in previously in a solid state having the least entropy, और ये है aqueous state में। तो ये अगर हमारा फॉर्मूला है डेल्टा S is equal to S of final state minus S of initial state। तो अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो जो है फाइनल स्टेट इसका ज्यादा हुआ एंट्रोपी, मतलब H2 ज्यादा है S1 से, इसलिए डेल्टा S का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, आएगा वैल्यू यहाँ पे यू नो पॉजिटिव। दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। यू नो दैट सपोज इफ यू टेक हियर H2 gaseous plus O2 gaseous, so it will give here twice H2O liquid. So in that case delta S is equal to क्या आएगा? Now just take an example. 2 moles of hydrogen which are in gaseous phase combined with 1 mole of oxygen which is also in gaseous phase. 2 plus 1 कितने हो गए? 3 moles. 3 moles of gaseous phase having more entropy than 2 moles of liquid water. यहां पे एंट्रोपी क्या हुआ? यहां पे एंट्रोपी कम हुआ है। कैसे? क्योंकि 3 मोल्स है गैसियस, गैसेस के लिए सबसे ज्यादा रहेगा एंट्रोपी का वैल्यू। सो यहां पे डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा एस का वैल्यू यहां पे आएगा निगेटिव। ओके, सो इस तरीके से यस, इन दिस वे वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। आया समझ में? क्योंकि यहां पे 2 और 1 3 मोल्स थे, 3 मोल थे गैसियस स्टेट में, वो आए किसमें? वो आए हैं लिक्विड स्टेट में। मतलब 3 मोल गैसियस के अगर 2 मोल में होते हैं चेंज, तो यहां पे एंट्रोपी क्या हो जाएगा? एंट्रोपी इट विल डिक्रीज। अंडरस्टैंड? डेल्टा एस का वैल्यू यहां पे होता है नेगेटिव। सो इन दिस वे वी कैन से द वैल्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा एस की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू से वन थिंग, delta S is directly proportional to yes amount of heat supplied to the system. कैसे? सोचिए अगर हमने सिस्टम को हीट सप्लाई किया, then this gases, I mean if there is the presence of gas molecules or any other molecules, by getting that heat their energy it will increase. That is nothing but काइनेटिक एनर्जी। सो जैसे हम उसको हीट देंगे तो हीट के साथ यहां पे क्या हो जाएगा? देयर यस एनर्जी विल इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई
randomness will also increase. So one thing is clear here, delta S is directly proportional to Q reversible. डेल्टा एस क्यू जो है रिवर्सिबल के साथ में बढ़ेगा. अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एट द सेम टाइम यू कैन सी दिस डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये यहां पे क्यों लिखा है? जस्ट इमेजिन अगर टेम्परेचर सिस्टम का कम है, ऐसे में टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम का एंट्रोपी तो बढ़ जाएगा. देखिए सोचिए, टेम्परेचर सिस्टम का क्या है, कम है. ऐसे में अगर हमने टेम्परेचर दे दिया सिस्टम को, तो चलो समझ लो यहां पे एंट्रोपी हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी of the system or the molecules in the system. Clear? लेकिन ऑलरेडी सिस्टम का अपना टेम्परेचर ज्यादा है. ऑलरेडी जो है सिस्टम, उसका जो टेम्परेचर है अगर ज्यादा है, ऑलरेडी इज एट द हाईएस्ट लेवल, और फिर भी अगर हमने उसको हीट दिया, तो ऐसे में डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मोर मतलब मैक्सिमम स्टेट पे है. तो ऐसे में टेम्परेचर अगर हमने दे भी दिया तो इससे ज्यादा कुछ एंट्रोपी में ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं. इसीलिए याद रखिएगा, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ वी कंसिडर that we are giving the temperature to the system which is already having highest temperature, तो इसमें ज्यादा एंट्रोपी में बदलाव नहीं आएगा. So that is the case here. We have to take delta S is inversely proportional to absolute temperature. So this thing you have to remember. Now some more examples are there. मैं यहां पे बोर्ड पे लिखता हूं, तब तक आप मुझे बताइएगा कि ये जो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, यहां पे एंट्रोपी चेंज कैसे होगा. एक्सप्लेन हाउ एंट्रोपी चेंजेस इन द following examples. Number 1, freezing of liquid. Number 2, sublimation of solid. Dissolving of sugar in water. And the fourth one, condensation of vapor. Okay, now we have these 4 examples. Freezing of liquid, sublimation of solid, dissolving of sugar in water and condensation of vapor. So इन सभी examples में देखते हैं पहला एग्जाम्पल. तो फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड में क्या होगा, जस्ट टेल मी. अगर लिक्विड होता है फ्रीज, तो यहां पे हम उसको लिखेंगे H2O, liquid will change to H2O, yes, solid.
तो लिक्विड से यहां पे बन गया सॉलिड, मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी, एंट्रोपी हुआ है डिक्रीज, एंट्रोपी यहां पे क्या हुआ है, डिक्रीज, क्योंकि लिक्विड की अगर आप बात करेंगे, सो लिक्विड दे आर हैविंग इंटरमीडिएट एंट्रोपी, और इन केस ऑफ अ सॉलिड द लिक्विड एंट्रोपी विल बी लीस्ट। तो यहां पे एंट्रोपी कम हुआ है, एंट्रोपी इट विल, यस यस, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड में क्या हुआ, एंट्रोपी इट विल डिक्रीज। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सोचिए कोई अगर सॉलिड है और डायरेक्टली इसका होगा सब्लिमेशन, मतलब वो चेंज होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में। आपको बताया यहां पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है ना। अगर एग्जांपल लेके हम आयोडीन का, क्रिस्टल का, अगर इनका होता है सब्लिमेशन तो क्या हो जाएगा, आयोडीन वाज प्रीवियसली प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, नाउ डायरेक्टली गोइंग इन अ गैसियस स्टेट, एंट्रोपी इंक्रीजेस। डिसॉल्विंग ऑफ अ शुगर इन वाटर, शुगर जो है प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, तो यहां पे पहला जो एग्जांपल है इसमें क्या हुआ, यस, इन द फर्स्ट एग्जांपल क्या हुआ, एंट्रोपी का, एंट्रोपी डिक्रीजेस, यहां पे एंट्रोपी इंक्रीजेस। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, जैसे मैंने आपको बोला कि शुगर का होता है सॉलिड स्टेट, इट इज हैविंग द मिनिमम एंट्रोपी, फिर अगर उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो उसका हो गया फेज चेंज, शुगर अब है लिक्विड फॉर्म में, तो इसका एंट्रोपी यहां पे क्या हो गया, इंक्रीज। सो आई राइट हियर इंक्रीजेस। कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, वेपर्स दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, जब उनका हो जाएगा कंडेंसेशन, क्या हो जाएगा, दे विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, तो यहां पे क्या हुआ, एंट्रोपी, देखिए ना, गैसेस से लिक्विड हो गया, मतलब गैसेस से मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी इनका कम हुआ ना। सो हियर वी हैव टू राइट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इट विल डिक्रीज, डिक्रीजेस। सो इन दिस मैनर वी हैव टू क्लासिफाई द डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर द एंट्रोपी चेंज। मेनी मोर एग्जांपल्स मे बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए, आपका जो टेक्स्ट बुक दिया है पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको रेफर कीजिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो एक्चुअली हमको दिए हैं एग्जांपल्स, ये हमें सॉल्व करने हैं, और यहां पे हमें पूछा है प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आपके सामने बोर्ड पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, यस, वी हैव टू प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। पहला वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 molecule of H2 gaseous get split up into 2 atoms, twice H gaseous. So in this case, देखिए 1 molecule gets split into 2 atoms, means disorder यहां पे क्या हुआ है, disorder यहां पे हुआ है increase, तो यहां पे yes एंट्रोपी क्या हो जाएगा, the value of delta S is, yes, क्या आएगा, it's a positive, or we can say entropy of the system it will increase, क्योंकि 1 molecule से बने हैं 2 atoms, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे बढ़ गए और एटम्स है, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डर जो है और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे एंट्रोपी हो गया है इंक्रीज। दूसरे एग्जांपल में देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के 2 मोल्स है और वो है इन द यस सॉलिड स्टेट, इससे फॉर्म हुए हैं सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा, आल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, और जो दिया है आपको CO2, CO2 and H2O, दे आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। पहले था सॉलिड स्टेट और इनसे फिर हमें 2 मोल्स गैसियस के मिले हैं, फ्रॉम द 2 मोल्स ऑफ सॉलिड स्टेट
we are getting 2 moles of gaseous. Gases, they are having higher entropy. I will say highest entropy in between solid, liquid and gases. यहाँ पे entropy बढ़ गया. So here we have to write entropy, it will increase. Entropy increases. A liquid crystallizes into solid. देखिए लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड crystallizes into solid. Liquid is having more disorder, and when it will change to solid, disorder will decrease. तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है क्योंकि लिक्विड जो पहले था इट वाज अ मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट, मोर एंट्रोपी. इनसे बना है सॉलिड जो कि है लेस एंट्रोपी वाला. तो यहां पे मैं कहूंगा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इट विल डिक्रीज. टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. सी when the solid is there and they are saying crystalline solid, so they have perfect arrangement, orderly arrangement of the constituent particles. इसका एंट्रोपी कम होगा लेकिन वो रहेगा 0 केल्विन पे. जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा 115 केल्विन तक तो यही डिसऑर्डर जो है, आई मीन ये जो है आई विल से परफेक्टली अरेंजमेंट या फिर ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये चेंज हो जाएगा. इट विल चेंज टू डिसऑर्डर फॉर्म. इसलिए यहां पे भी क्या होगा, एंट्रोपी हो जाएगा इंक्रीज. सो हियर एंट्रोपी इट विल इंक्रीज. So in this way we have to give such examples. So in this way you have to tell whether the entropy it will increase or decrease. इस बात में जाके हमें देखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आप तो कहोगे हमारा हो गया है, लेकिन यह है सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी. इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी. Yes, it states that the entropy of system and its surrounding. देखो सिस्टम एंड सराउंडिंग जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा यूनिवर्स. द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, दैट इज ऑफ यूनिवर्स, ऑलवेज increases in the spontaneous process. So entropy of the system and its surrounding will increase in a spontaneous process. For example, delta S of universe is equal to delta S total is equal to delta S of system plus delta S of surrounding, and this value will be greater than 0. In this way we can write the statement, we can write the equation for second law of thermodynamics. डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का आएगा, ये हमेशा ज्यादा होगा. ठीक है, तो इस बेसिस पे डेल्टा एस टोटल जो है डेल्टा एस के कंडीशंस के हिसाब से हम कह सकते हैं डेल्टा एस टोटल पहले हम बात करेंगे. अगर डेल्टा एस का वैल्यू है greater than 0, then the process is said to be spontaneous. When delta S total is less than 0, the process is said to be non-spontaneous.
and when delta S total is equal to 0, then the process is at equilibrium. In this way, the value of delta S total will help us to predict the spontaneity of the process. ठीक है, लेकिन यहां पे भी वापस मैं कहूंगा है एक्सेप्शन. जैसे देखिए, आपको पता होगा H2 gaseous react with O2 gaseous. 2 moles of H2 gives 2 moles of O2, 1 mole of O2 and gives H2O liquid. ठीक है. Now here delta S का जो वैल्यू है, now see its value is given as minus 327 joules per Kelvin. Now you can see delta S का वैल्यू देखो, यहां पे 2 मोल्स किसके हैं? H2 के 2 मोल्स हैं गैसियस. 1 मोल किसका है? ऑक्सीजन का. मतलब 3 मोल गैसेस के बन गए 2 मोल्स वाटर के. इसीलिए डेल्टा एस का वैल्यू कितना है? माइनस. यस. नाउ इन दिस केस 2 मोल्स ऑफ लिक्विड. एंट्रोपी यहां पे क्या हुआ? एंट्रोपी डिक्रीजेस. मतलब डेल्टा एस का वैल्यू यहां पे क्या हुआ है? इट्स लेस देन 0. माइनस दिया ना वैल्यू यहां पे. फिर भी ये प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस. आपको पता है ये रिएक्शन कुछ इस हद तक जाएगा. इट प्रोड्यूसेस सम explosive violence also. So this is a spontaneous process. So this is an exception, but still this formula is also useful for us. इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, नोट डाउन कर लीजिएगा. आपको वीडियो को पॉज करना है. ठीक है. सो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नाउ रिमेंबर दिस इज द एक्सेप्शन. So mostly this formula is also useful for us to predict the spontaneity. Maybe the next lecture जो हमारा यहाँ पे होगा, it's the last lecture of theory. फिर हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स. ओके, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक हो जाएगा पूरा. Please note down this carefully with all that examples properly given. टेक्स्ट बुक में भी जो एग्जाम्पल है हम बाद में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ओके, till that time, take care and stay at home. Have a nice day.